Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 28th August 2020. So let us see which are the important articles in today's newspaper and take input for our examination. So these are the articles mains and for prelims examination. Let us see them one by one. So first on page number 6, editorial page, the participants we need in phase 3 trials. Okay, so the context of the article is it is talking about including vulnerable groups and those healthcare workers in phase 3 trials of vaccines, and why it is important, significance, and then how do we include them. ठीक है, तो way forward उन्होंने दिया है. So need to include the vulnerable groups in phase 3 trials of the vaccine. So vulnerable groups including healthcare workers. So healthcare workers have to work in the high risk environment with repeated exposure to the infection, we know that, and vulnerable groups such as elderly and those with comorbidities have 5-fold to 15-fold greater mortality when they get COVID-19 than others. Such kind of facts we can use to support our arguments. Therefore, health workers and vulnerable groups need to be treated as priority categories for vaccination when COVID-19 vaccine is available, right? तो ये हम जानते हैं कि ये आर्गुमेंट हमें पता है पहले से ही. द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन इज़ 3-fold. तो ये एक बेसिक्स बताया गया है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन हियर. इन शॉर्ट टर्म टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फ्रॉम सीरियस डिसीज एंड डेथ. ठीक है, तो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को पहले प्रोटेक्ट करना ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड individuals from acquiring and unwittingly transmitting infection to their patients and family. तो ये ऑक्यूपेशनली एक्सपोज मतलब ये हेल्थ केयर वर्कर्स, सो डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स एंगेज इन द हॉस्पिटल्स, तो दे आर एक्चुअली एक्सपोज और उनको प्रोटेक्ट करना और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटिंग दैट इन्फेक्शन टू देयर फैमिलीज एंड अदर पेशेंट्स, तो वो हमें रोकना है. एंड इवेंचुअली टू इरेडिकेट द वायरल इन्फेक्शन. सो these are the 3 basic objectives of vaccination. And in pandemic situation, if the vulnerable groups are deliberately included from beginning in phase 3 trials using a special study design, when the trial is over we can proceed straight away immunizing these subgroups. तो एक्चुअली ये जो सबसेट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि जब वैक्सीन एक्चुअल में तैयार हो जाएगा तो उसके बाद वैसे भी हमें इमीडिएटली इन्हीं को देना है. तो उससे पहले अगर उनका एक सबसेट लेके उनके ऊपर उसका इफ़ेक्ट देखा जाए, वैक्सीन का स्टडी किया जाए, ठीक है, इफ़ेक्ट देके, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट ऑफ दिस वैक्सीन. ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले तो इन्फेक्ट होने वाले जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई वी नीड टू इंक्लूड देम इन दिस ट्रायल्स सो एज टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट ऑफ दिस वैक्सीन्स एंड स्टडी दैट इफ़ेक्ट. ठीक है, तो कोई भी वैक्सीन जब इफेक्टिव होता है तो हमें ये एक एस्पेक्ट ज़रूर देखना है. सो व्हाई हेल्थ केयर वर्कर्स, अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट. हिस्टोरिकली हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन ऑफन विद द फर्स्ट टू वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन सच स्टडीज़, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होता है, जो ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स. Participation of healthcare workers will motivate and enthuse the members of general public to participate in such trials. At the same time, healthcare workers, in particular doctors and nurses, understand the controlled clinical trials and their safety features. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है टू प्रोवाइड इन्फॉर्म कंसेंट. उनको अच्छे से पता होता है कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या सेफ्टी फीचर्स है इसके. Information on the side effects, a vital deciding factor on vaccine efficacy, is easy to collect and document if the health workers are part of trial, because they understand all these side effects, meaning of the side effects, they can effectively convey that in the survey. ठीक है, तो ये important हम arguments लिखेंगे, reasons लिखेंगे why healthcare workers should be included in phase 3 trials. So way forward, such kind of initiative already taken, like Duke Research Institute started HERO, healthcare work exposure response and outcomes, which encourages healthcare workers to participate in clinical trials of COVID-19 vaccine. Those healthcare workers who have already been contracted COVID-19 who do not need the vaccine will be listed in the national registry. उनको exclude किया जा सकता है. Of those who have not so far infected, IgG antibody testing will be let's say will identify antibody positive subjects who do not need vaccination. They can also be excluded.
and only the remaining proportion of healthcare workers will be susceptible for COVID-19 infection and they can be enrolled for COVID-19 वैक्सीन ट्रायल्स। तो ऐसे ये वे फॉरवर्ड यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट्स वाई हेल्थ वर्कर्स शुड बी इंक्लूडेड, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Fine. When the healthcare workers come forward, then the general public feel confident to come forward and enroll voluntarily to these clinical trials. So, very good article regarding COVID-19 vaccination and phase 3 trials. थोड़े से हम बोल सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ें हैं बट हमें पता होनी चाहिए कोविड-19 से रिलेटेड एवरीथिंग। Moving on to next article, a no-win situation. Here the context is the dilemma of conducting NEET and JEE examination this year. The Union Education Ministry is under the compulsion to strike the balance between ensuring physical and emotional well-being of the aspirants and sustaining merit-based admission process while seeking to limit the academic disruption. तो ये दोनों में उनको बैलेंस करना है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डायलेमा आ रहा है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को। आर्गुमेंट्स में देखते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बताया है कि वी कैनॉट पुट द लेट्स से करियर ऑफ स्टूडेंट्स in the peril for long. Further, the delay could lead to 0 academic year as concern shared by many academics. ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए एग्ज़ाम लेना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। However, there are some challenges at the ground which should be addressed, with many states not resuming public transport services, hotels remaining closed, travel and accommodation for candidates for interior regions is the major challenge. Socio-cultural pressure are such that girls from the villages, tier 3 towns are likely to face hurdles as travelling alone would not be encouraged under such unusual circumstances. Delay in admission to IITs and medical colleges would have an adverse bearing on BE, BTech seats in leading institutions including deemed universities, as eventually they may go vacant as students opt out. So what is the way out here, way forward? The government must explore the alternatives such as allowing states to conduct medical admissions based on 12th board marks using standard normalization. तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के 12th जो स्टेट बोर्ड होता है वहाँ से जो मार्क्स आते हैं वो यूज़ कर लेने चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन. नीट could be limited to central institutions only. Likewise, instead of JEE, a nationwide marks normalization could be examined. But IIT directors have argued that would let's say doing away with JEE would dilute the quality of education. तो ये एक उस पर हम limitation बोल सकते हैं. Examination slots could be staggered and number of centers could be drastically increased so as to follow the social distancing norm and reduce the contact. We can say what you can say contraction, or we can say that this chain can be broken if in case there is contamination at the examination halls. Fine. So extraordinary circumstances may require extraordinary solutions. Pragmatic compromises are inevitable in such exceptional situations. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. जहाँ कोविड-19 की बात होगी आज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है तो रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस इन एवरी स्पेयर ऑफ लेट्स से गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवन पब्लिक लाइफ. तो ये आपको वे फॉरवर्ड में पता होनी चाहिए कि कैसे क्या लिखना चाहिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. फाइन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहे थे रिसेंटली कि हाउ टू कंपेंसेट स्टेट्स ऑन द लेट्स से जीएसटी कंपेंसेशन फंड जो है वहाँ पे ऑगमेंटेशन बहुत कम हो गया है क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से और लॉकडाउन की वजह से. तो कैसे उनको कंपेंसेट करें, तो उसके लिए अभी सेंटर ने 2 ऑप्शन दिए हैं स्टेट्स के ऊपर, स्टेट्स के लिए चूज़ करने के लिए. द सेंटर एक्नॉलेज दैट स्टेट्स आर लाइकली टू फेस जीएसटी रेवेन्यू गैप ऑफ ₹3 लाख करोड़ दिस ईयर as economy may contract due to COVID-19, which the finance minister term unforeseen act of God. तो ये act of God बोल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. अनफोर्सिन है तो किसी के भी हाथ में नहीं था, अनफोर्सिन था. और जो जीएसटी एक्ट है हमारा, वैसे उस एक्ट में लेजिस्लेशन में ऐसे किसी भी तरीके का मेंशन नहीं है. ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड या ऐसे टाइप का अनफोर्सिन इवेंट का. सो कंपेंसेशन सेस कलेक्शंस आर ओनली expected to bridge 22% of this gap
Of the remaining 2.35 lakh crore, the center said only 97,000 crore was due to GST implementation itself rather than caused by impact of COVID-19. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दो ऑप्शन ऑफर किए हुए हैं बाय सेंटर टू स्टेट्स. A special window could be provided in consultation with RBI to that states can get this 97,000 crore at a reasonable rate of interest, and this amount will be can be repaid after 5 years through collection of cess. ठीक है, तो वो स्टेट्स डायरेक्टली आरबीआई से बोरो कर सकते हैं और फिर 5 साल बाद में रीपे कर सकते हैं सेस कलेक्ट करके. Another option is that this entire gap of 2.35 lakh crore can be met by the borrowing by the states. तो either आप इतना जो डेफिसिट है ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन उतना ही बोरो कीजिए, या फिर दूसरा है कि जो भी तुम्हें डिफिसिट अभी लग रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन सारा का सारा आप बोरो कर सकते हैं. दोनों में से एक ऑप्शन उन्होंने अभी दिया है, एंड इट हैज़ गिवन लेट्स से 7 days to consider the options and then they can take decisions on the basis of majority. GST काउंसिल में जो डिसीजन होता है वहाँ पे 2/3 स्टेट्स का जो माना जाता है, 1/3 सेंटर का वोट होता है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे वोटिंग होगी और डिसीजन लिया जाएगा. फाइन, इसमें फॉलोअप आएगा, एनालिसिस आएगा फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. वी विल हैव फॉलोअप ऑन दिस न्यूज़. मूविंग ऑन, कैटेगराइजिंग एक्टिविटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैंडमिक. थोड़ा सा एक हटके मतलब आर्टिकल लिखा गया है और उसमें एक बिहेवियरल मॉडल कैसे हो सकता है लोगों के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, सो एज टू लेट्स से एग्जैक्टली एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व इन कोविड-19. पीपल आर नॉट एबल टू जज दिस रिस्क एट प्रेजेंट. कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है ये तो होना ही था, होगा तो होगा, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं. कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क मानते हैं और जब वो मानते हैं कि अभी घर से बाहर ही नहीं निकलना है बिल्कुल भी, नहीं तो कोविड-19 हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते हैं मतलब पैनिक होके, या फिर ऐसे चीज़ें होती है जैसे हमने देखा था लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारा सामान जो है घर पे लगने वाला सब एक साथ में खरीद लेना, या ऐसी चीज़ें जो है वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लेट्स से रिस्क इन्वॉल्व हियर पीपल आर बिहेविंग इन सच मैनर. ठीक है, जैसे कुछ यंग पॉपुलेशन है, उनको लग रहा है कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर ऐसा एक एटीट्यूड हम बोलते हैं ना कि माइंड में फिक्स हो गया है अभी कोविड-19 के, क्योंकि ये नॉवेल कोरोना वायरस अभी नॉवेल नहीं रहा, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी पता चली है लोगों को, राइट. So that's why due to this awareness, however, even some let's say sections of people have skewed information, fake news are spread during this time, और इसलिए अच्छे से सही से पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है, बिहेवियर में तो ये बहुत समझना ज़रूरी है. ये आर्टिकल में सारी चीज़ें बताई गई है. फाइन, सो देखते हैं क्या बोला है कि व्हाई डू पीपल मिसअंडरस्टैंड रिस्क ऑफ कोविड-19. The first it is that the coronavirus is not novel anymore, that we know much of the information about it, and but more importantly behavioral science studies show that number don't move people. यानी कि जो डेली नंबर्स आ रहे हैं कि 75,000 जो है लोगों को एक दिन में 24 घंटे में पॉजिटिव आए हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग डेली, ये लोगों को इसका जो है इम्पैक्ट कम होता है. Rather, when someone close to us in the proximity or relationship contracts COVID-19 or even succumbs to it, the fear becomes tangible. People suddenly feel vulnerable. तभी एक्चुअली बोलते हैं ना कि हमें हमारे घर में या हमारे रिलेटिव्स में किसी को जब तक होता नहीं है तब तक उसका जो हम बोलते हैं कि ग्रेविटी नहीं समझ में आता है, और उसके बाद ही लोगों को फील होता है कि नहीं नहीं हम बहुत ज़्यादा अभी वल्नरेबल है. ठीक है, तो इमोशंस कॉज अस टू मिसअंडरस्टैंड द रिस्क, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लाइक फ्लाइंग इवोक्स ए पावरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स दैट यू आर लिटरली अप इन द एयर इन द हैंड्स ऑफ मशीन एंड 2 pilots. इफ समथिंग हैपन्स अप देयर, देयर इज नथिंग यू कैन डू इट. दिस मेक्स फ्लाइंग फील अनसेफ इवन दो इट इज अमंग द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो इमोशंस जो होते हैं हमारे, दे टेंड टू लेट्स से मिसअंडरस्टैंड द रिस्क बाय द पीपल. ठीक है, तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है. सो हाउ डू वी कैन डिवाइस सच सिंपल बिहेवियरल मॉडल
to understand this risk. The risk of contracting COVID-19 in any given situation can be categorized as very high, high, medium, low, very low. Visiting a gym generally could fall under the very high risk, while playing the tennis in open space generally fall under very low risk, even though both activities related to fitness. To help the people understand better understand the risk involved here, the government needs to devise simple behavioral design. Just like traffic signal communicates stop, ready, go with red, yellow and green colors respectively, our daily activities can be categorized as red, orange and green. ठीक है, तो वैसे ही रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन क्या हो सकते हैं, वहाँ पे एग्जांपल दिए गए. फॉर एग्जांपल, हैविंग आउटसाइडर विजिट योर होम कुड बी रेड, विजिटिंग रिटेल स्टोर्स कुड बी ऑरेंज, और मीटिंग अ फ्रेंड इन अनक्राउडेड पार्क वाइल कीपिंग ए सेफ डिस्टेंस वेयरिंग मास्क कुड बी ग्रीन. तो ऐसी सिंपल चीज़ें पता होनी चाहिए लोगों को कि ये सही है, ये गलत है, इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें कम है, इसमें मॉडरेट रिस्क इन्वॉल्व है. तो ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता होगी, देन ओनली दे कैन जज द रिस्क एंड देन द साइकिल दैट इज इन्वॉल्व इन दिस स्प्रेड ऑफ दिस पैंडेमिक कैन बी ब्रोकन. If people can't judge risk accurately, COVID-19 is likely to continue to spread like a raging fire in the forest. So this is again the good statement that can be used here. Fine. So from let's say essay perspective, अगर COVID-19 पे आता है तो behavioral aspect आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है कि. Moving on to next, states can have subgroups among SC/STs, says court. A new judgment by Supreme Court here regarding what you can say, which scheduled caste and scheduled tribes can be, let's say, have under subgroups. ठीक है, तो अभी जो SC/ST का लिस्ट होता है that is published by central government. Central list of scheduled caste and scheduled tribe is notified by President under Article 341 and 342 of the Constitution. And consent of Parliament is required to exclude and include caste in the list. In short, states cannot unilaterally add or pull out caste from the list. तो यहाँ पे अभी उन्होंने बोला है, पहले एक जजमेंट था, उसके अगेंस्ट ये जजमेंट लिया गया है. 2004 में जजमेंट दिया गया था बाय द E.V. चेन्नैया केस. In this Chennaiya judgment, they had held that allowing states to unilaterally make a class within the class of members of scheduled caste would amount to tinkering with the presidential list. तो ये एक्चुअली अभी उन्होंने बोला है, उल्टा अपोजिट बोला है, that the 5-judge bench in the Supreme Court held that state can sub-classify scheduled caste and scheduled tribes in the central list to provide preferential treatment to weakest of the weak. Fine. Also the bench acknowledged that, अच्छा ये दोनों 5 जज बेंच थे, तो अभी अपोजिट हो गया दोनों का, तो इसलिए नाउ दिस बेंच हैज़ लेट्स से रेफर्ड द इशू टू द 7 जज बेंच नाउ. फाइन. तो जजमेंट इज सिग्निफिकेंट एज इट फुल्ली एंडोर्सेस द पुश टू एक्सटेंड क्रीमिलियर कंसेप्ट टू SC/ST. क्रीमिलियर कंसेप्ट जो है अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC को है सिर्फ, वो अभी जो है एक्सटेंड करने की बात हो रही है जजमेंट में SC/ST को. Citizens cannot be treated to be socially and educationally backward till perpetuity. Those who have come up must be excluded from the like the creamy layer. ठीक है, ऐसा जजमेंट में कहा गया है. तो ये हम देख सकते हैं कि जो अब तक का व्यू था SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उसको अब तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से चेंज करने की बात नहीं की थी. However, now the government has, let's say, judiciary has the view that the creamier concept should be extended to SC/STs also. ये creamier concept जो है वो लाया गया था इंदिरा साहनी केस जो है 1992 में, तो वो उसी केस में 50% जो कोटा, जो कैप लगाया था कोटा का, और उसमें ही बोला गया था कि क्रीमी होना चाहिए OBC को, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को. फाइन. तो उसमें प्रीलिम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जांपल ये जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स है वो आर्टिकल इसके अंडर होता है. एंड द कंसेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बोला गया है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का नहीं होता है, रादर ये पार्लियामेंट का होता है. और स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट यूनिलैटरली चेंज. ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा 1 ओनली.
नेक्स्ट 5 members ऑफ ग्रेट अंडमान ट्राइब टेस्ट पॉजिटिव. ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस एस्पेक्ट बिकॉज वी नो दैट दीज आर अगेन प्रिमिटिव वल्नरेबल लेट्स से ट्राइबल ग्रुप्स है. पीवीटीजीज कल ही हमने इसकी बात की थी पीवीटीजीज की. तो उसमें ये 5 ट्राइबल ग्रुप्स है वहाँ पे. जैसे कि कौन से 5 पीवीटीजीज है? ग्रेट अंडमानीज, जारावाज, ओंग्स, शॉम्पेन्स एंड नॉर्थ सेंटिनलीज. ये अंडमान आइलैंड्स के यहाँ पे ये 5 पीवीटीजीज है. उनमें से अभी जो ग्रेटर अंडमानीज है वो ये कोविड-19 उनको हुआ है मेंबर्स को, और वहाँ पे आइसोलेशन करने की शुरुआत हो चुकी है. ठीक है, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब पीवीटीजी है वो. और ये जो है वन ऑफ द 5 पीवीटीजीज है अंडमान का, और वो जेरू नाम का डायलेक्ट जो है उनमें बात करते हैं. उसमें यहाँ पे जो नंबर दिया है द हिंदू में 74 है, बट बाकी बहुत ज़्यादा जगह पे वो 59 बताया गया है. ठीक है, तो वो नंबर में एक्चुअली कन्फ्यूजन है, तो वो स्पेसिफिक नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आंसर में. 5 पीवीटीजीज रिसाइडिंग इन द अंडमान, ये अभी हमने बात की. 5 जो है वो आपको ये पता होने चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. पीवीटीजीज आर नॉट ओनली वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड पॉपुलेशन, but the members of communities are very close to each other. Therefore, isolation of individuals should be very humane manner, and other members of the communities need to be informed that isolation is the part of treatment. ठीक है, देखो एक तो पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. these community members, tribal members, they do not let's say consider or do not have very good relations with the outside world, and therefore they have been remaining in the isolation for long period of time now, and even the government also consider this a very good idea. उनको कोई disturbance नहीं होना चाहिए. तो ये अभी कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रीटमेंट का पार्ट है उनको अच्छे से. ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहा है. फाइन. सो यस, इस पे कोई अगर फॉलोअप आता है तो हम देखेंगे, बट प्रीलिम्स के लिए आपको ये पीवीटीजीज कौन से है पता होनी चाहिए. So some captions and quotations. Extraordinary circumstances may require extraordinary solutions. ये एथिक्स में और एसए में बार बार यूज़ किया जा सकता है. जैसे कोई आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस आता है और एक्शन लेना है एथिक्स में, केस स्टडीज़ में, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं. और ये दूसरा जो है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट है कोविड-19 के टाइम पे. तो बिहेवियरल एस्पेक्ट के अगर कोई आपको लिखना है तो आपको यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हाउ द पीपल आर नॉट एबल टू जज द रिस्क इन्वॉल्व इन कोविड-19 एंड हाउ देयर बिहेवियर इज लेट्स से इन्फ्लुएंस्ड हेयर. सो सच काइंड ऑफ सिंपल बिहेवियरल मॉडल कैन बी डिजाइंड. फाइन. सो दीज वेर important articles from today's The Hindu newspaper. For further information on editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all these current affairs issues, especially those which are men's related issues for our examination, is done by Ansari sir and team. To enroll that course you can contact Luqman IAS. Thank you.